Okay, good afternoon. Uh, should I tell you one trick? In Kolkata, I was a student of City College of Commerce and Business Administration. There, Mr. Amilendu Das Gupta, Chartered Accountant, used to teach accounts. So he used to tell that tomorrow I'm taking class on this. So before that, my father was in Pricewaterhouse Taxation Department. I used to learn everything about that chapter, and in this college, when Professor Amilendu Das Gupta used to start take class, I speak something more than him, because my father had very deep knowledge of accounts, taxation, auditing, everything. So I used to learn from them. I remember that is not there, but whatever I am due to my parents only. So one basic thing I want to tell you about accountancy. My father taught me what is accountancy. Remember what was the grips. I had so many lectures of qualified chartered accountants also. Now you compare yourself with the definitions which I learned from my father, and now I am explaining before you, because I am a trainer also. So what is the difference that between both you can judge? No, criticizers and blamers may say that this is lacking, this is like a don't take care of that. Suppose every good thing they will criticize, but suppose something good, then accept, and suppose something not acceptable, you let me know or you reject it. Now see, he told me that accountancy is the art of recording business transactions in the books of accounts in a systematic way. What is accountancy? The art of recording business transactions in the books of accounts in a systematic way is called accountancy. So there are 4 elements of accountancy. Number 1, the art of recording. Number 2, business transactions. Number 3, systematic way. Number 4, books of accounts. These all will comprise, and when you collect, then becomes accountancy. But it is not so simple. Let us come to first business transactions. What is business transactions? हिंदी में उसको बोलते हैं व्यापारिक लेन देन। हमने आपको कुछ दिया, आपने ले लिया, या हमने आपको कुछ दिया, उसके बदले में आपने दे दिया। तो क्या ये लेन देन हो गया क्या? लो परीक्षा में प्रश्न आता है कि लॉस बाय फायर ये ट्रांजैक्शन है या नहीं? अभी मेरे परिभाषा सीखने के पहले, मेरे परिभाषा बताने के पहले 99% लोग बोलेंगे न कुछ लिया न कुछ दिया। तो फिर ये लेन देन होगा कैसे? लेन देन नहीं है। अब मैं परिभाषा बताता हूँ जो मैंने अपने फादर से सीखा। उन्होंने बताया all happenings of a business which affect the business directly or indirectly is called transactions. तो भी ट्रांजेक्शन्स होने के लिए पहला चीज क्या है? कोई घटना घटनी चाहिए, वो घटना व्यापार में घटनी चाहिए। दूसरा नंबर 3, वो मेरे व्यापार को प्रभावित करे। नंबर 4, प्रत्यक्ष रूप से। नंबर 5, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है? अब आप सोचो, लॉस बाय फायर, व्यापार में आग लग गया, हमने न किसी से कुछ लिया न किसी को कुछ दिया, लेकिन मेरे 5 लाख की संपत्ति जल गई ना। तो एक घटना घटी, व्यापार में घटी।
नंबर 1, इसने प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। क्या किया कि हमारे 5 लाख का रॉ मटेरियल कम गया, और अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित किया। क्या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया कि देखो साहब, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने को ही मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कहते हैं। रॉ मटेरियल में कुछ उपयोगिता डाल दीजिए और उसको कन्वर्ट करके सेलेबल और फिनिश्ड गुड्स बना के सेलेबल करिए, तो उसको फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। ये 5 लाख रुपए का जो रॉ मटेरियल जल गया, ये 5 लाख रुपए का भविष्य में फिनिश्ड गुड्स में इसका वैल्यू 20 लाख होगा, 25 लाख होगा। तो 25 लाख माइनस 5 लाख मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों मिला के मेरा 20 लाख का मार्जिन हुआ, है ना। तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बदला, है ना। तो क्या हुआ? तो ये जो 20 लाख का जो मेरा प्रोबेबल फ्यूचर लॉस है, इसका लॉस हुआ, ये इनडायरेक्ट लॉस हुआ। इस 5 लाख से हम 20 लाख भविष्य में कमा सकते थे, ये मेरा इनडायरेक्ट लॉस हो गया, है ना। समझ में आया ना। तो इसलिए ये लॉस बाय फायर में न हमने कुछ लिया न कुछ दिया, लेकिन यह ट्रांजैक्शन हो गया, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन की परिभाषा की सभी आवश्यक तत्व है। पहला क्या है? ये व्यापार में घटना घटी, व्यापार की घटी, नंबर 1। नंबर 2, व्यापार में घटी। नंबर 3, हमारे व्यापार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया, माल जल गया, कम हो गया। और नंबर 4, मेरे फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को इसने कम कर दिया, इनडायरेक्ट लॉस हो गया। तो हर तरह से ये ट्रांजैक्शन कहलाया। यही पे ये हमारे फादर का परिभाषा जो दिया हुआ, समझाया हुआ यहाँ पे काम आते। एक बार बैंक रिकॉन्सिलिएशन पर भी हम क्लास लेंगे, उसको आप देखना, आपको समझ इतना बढ़िया से समझाया तो उन्होंने पानी की तरह। आज तक बैंक रिकॉन्सिलिएशन में कभी भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नंबर 2, तो पहला तो बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग समझ गए। अकाउंट्स की परिभाषा में 4 तत्व में बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हमारे व्यापार में बहुत आग लग गई और ये 5 लाख का जल गया, इतना बड़ा चीज खाता में थोड़ी लिखते हैं। तो बड़े 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 घटनाओं को छोटे छोटे रूपों में परिवर्तित किया, और ये छोटे रूप को हम बोलते हैं अकाउंट्स। हिंदी में मद बोलते हैं। वी कॉल small portion, means small shape of these big transactions are converted into small shape, that is called accounts. And accounts again we are classified into 2 parts. इसको 2 भागों में बांटा गया, पहला पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल का अकाउंट किसको बोलते हैं? जो खाता नाम से खुले, कंपनी के नाम से, आदमी के नाम से, किसी भी नाम से खुले, उसको पर्सनल खाता बोलते हैं। और दूसरा हुआ इम्पर्सनल, उसको हिंदी में बोलेंगे अव्यक्तिगत खाता। अब जो पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल है। सिंपल सा परिभाषा, जो पर्सनल नहीं है इम्पर्सनल है। और इम्पर्सनल को 2 भागों में बांटा गया, रियल और नॉमिनल। रियल में धन संपत्ति आता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ये सारे हमारे संपत्ति हुए। तो धन संपत्ति का खाता को रियल बोलते हैं। और नॉमिनल अकाउंट यानी लाभ हानि आय व्यय, लाभ हानि आय व्यय, है ना। तो इस तरह से अकाउंट्स को 2 भागों में बांटा गया, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को 2 भागों में बांटा गया, रियल और नॉमिनल। नहीं पूरा, हाँ। तो अब क्या किया गया, ये तो आपने समझा कि अच्छा, अब इसको खाता में उतारने के लिए हमने क्या किया? रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग बनाया, जिसको हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट क्या है? सिस्टमैटिक वे। रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग क्या बनाया गया? पहले देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होता है जिसके 2 पहलू नहीं होते। हमने राम को 10 रुपया दिया, तो एक राम हो गया और दूसरा मेरा रुपया गया, रुपया हो गया, 2 प्रभावित करता। हमने फर्नीचर खरीदा, एक फर्नीचर हो गया और दूसरा कैश हो गया, समझ गए। और हमको कमीशन मिला, तो एक कमीशन हो गया और एक कैश मिला,
समझ में आया? तो जब भी आप देखोगे कोई भी ट्रांजैक्शन, उसमें दो प्रभावित खाते होंगे। तो सिस्टमेटिक वे में कहा गया कि दोनों प्रभावित खाते को ढूंढ के अलग निकाल दो और उसके नेचर का पता लगाओ, है ना, जो पर्सनल है कि रियल है और कि नॉमिनल है। और इस पर्सनल, रियल और नॉमिनल के हिसाब से रूल ऑफ रिकॉर्डिंग अप्लाई करो। अब ये रूल ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है? अकाउंट्स में गोल्डन रूल है। पर्सनल अकाउंट जो नाम से खुलता है, उसको खाता में उतारने के लिए हम लोग को नियम बताया गया कि लेने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो अंदर अब जो आए, पैसा आए तो डेबिट करो, पैसा जाए तो क्रेडिट करो, संपत्ति आए तो डेबिट करो, संपत्ति जाए तो क्रेडिट करो। और तीसरा नॉमिनल का रूल है कि सारे एक्सपेंस और लॉस को, एक्सपेंस खर्च और हानि को डेबिट करो और प्रॉफिट और गेन्स को क्रेडिट करो। और ये तीन रूल से हमारा सिस्टमेटिक वे हुआ, उसको खाता में उतारते हैं, है ना। अब आ गया चौथा भाग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो खाता में उतारते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका जर्नल बनाते हैं। जैसे एक सिंपल सा बात सोचिए कि हमें सैलरी मिला, हमें सैलरी 5 लाख रुपया मिला, तो इसमें दो प्रभावित खाते को ढूंढो। पहला क्या खाता ढूंढा? पहला कौन सा खाता? सैलरी मिला तो मेरे पास रुपया आया, तो पहला कैश हुआ। और दूसरा, और क्या मिला? तो हमें आमदनी हुई, सैलरी मिला, हमें आमदनी हुई, सैलरी मिला। तो रियल का क्या रूल बोलता है कि जब संपत्ति आए तो डेबिट करो, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। और हमें आमदनी हुई तो आमदनी को नॉमिनल में क्रेडिट किया जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी हम अपने खाता में एंट्री करेंगे। और जिसने हमें सैलरी दिया वो डेबिट करेगा सैलरी को, क्योंकि सैलरी उसके लिए एक्सपेंडिचर है। नॉमिनल में वो एक्सपेंडिचर को डेबिट करेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। और कैश चला गया तो कैश को क्रेडिट करेगा। इस तरह से जर्नल बनता है। अब जर्नल का डिटेल मैं अगले क्लास में बताऊंगा। इस जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से दो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, है ना। ट्रेडिंग, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, 3 अकाउंट्स बनते हैं, है ना। ये सिंपलिसिटी में ये अकाउंट्स की केवल परिभाषा हुई, केवल परिभाषा हुई। इसके अलावा कैश बुक बनता है। कैश बुक 3 तरह का होता है बुक्स अकाउंट में। कैश बुक एक सिंपल कैश, सिंगल कॉलम कैश बुक, एक डबल कॉलम कैश बुक, एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक, एक पेटी कैश बुक, है ना। पेटी कैश भी सिंपल, एनालिटिकल और इम्प्रेस्ड 3 तरह का होता है। फिर सब्सिडरी बुक में सेल्स बुक, परचेज बुक, उधार खरीद के बिक्री के लिए सेल्स बुक, परचेज बुक, रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, फिर स्टॉक रजिस्टर, ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहलाते हैं। तो इसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे ट्रांजैक्शंस को व्यवस्थित ढंग से उतार लेने की कला को हम अकाउंट्स करते हैं। मेरे ख्याल से अब अकाउंट्स में आपको डर नहीं लगेगा। ये आधारभूत परिभाषा को आप जान लीजिए और हर समय इस तरह से सोचिएगा तो आपको अकाउंट्स में कभी गड़बड़ी नहीं होगी। इसमें एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, इसका बहुत महत्व है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।